السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالار عیدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بھی اپنے دستوں کو سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ کا یہی پیغام دے رہے تھے۔ سالار عاصم بن عمرو بھی، جو سالار قاقا بن عمرو کے بڑے بھائی تھے، اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے، اور یہ عزم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور میرے رفیقوں، جس طرح اللہ ہمیں فتح پہ فتح عطا کرتا جا رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارا لشکر یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست تو ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالے اور تکبر سے بچے۔ مدینے کی مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جنگ میں اس کے زخمیوں کو تڑپتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھے، اور انسان کوتاہی اور مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا سر تکبر اور غرور سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے انہیں نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ان مورخین کے مطابق، جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، خالد رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں ایک کے بعد دیگرے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ دن دے دے۔ وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جن سے دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ ایک چال خالد رضی اللہ عنہ ماضی میں آزما چکے تھے، یہ کامیاب رہی تھی۔ یہ تھا شب خون۔ پورے لشکر نے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت دشمن کا لشکر دو مقامات پر جمع تھا، ایک جومل تھا اور دوسرا تھا سینا۔ انہی دو مقامات کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہے۔ اب حسید کا بھاگا ہوا لشکر بھی وہی جا پہنچا تھا، اور مجی سے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی دو مقامات پر چلی گئی تھی۔ اس شکست خوردہ نفری نے سینا اور جومل میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ وہاں سردار اور سالار بھی تھے۔ انہیں بہت مشکل پیش آئی۔ جذبے کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے لشکر تازہ دم تھا۔ سینا میں ان کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ عورتوں نے مردوں کو بزدلی اور بے غیرتی کے طعنے دیے اور انہیں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان دو مقامات پر جنگ کی تیاریوں کا منظر جنگ جیسا ہی تھا۔ سوار اور پیادے تیگ زنی کی مشق صبح سے شام تک کرنے لگے۔ سوار دستوں کو حملہ کرنے اور حملہ روکنے کی مشقیں کرائی جانے لگی۔ اس وقت تک کسریٰ کے سالاروں اور ان کے اتحادی عیسائیوں کے سردار خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالیں سمجھ چکے تھے، لیکن چالیں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عیسائیوں کے ایک قبیلے کے سردار ربیہ بن بزیر کہہ رہا تھا، دل کو ذرا مضبوط رکھو
तो इन थोड़े से मुसलमानों को कुचलना कोई मुश्किल नहीं। उसके पास ईसाइयों के बड़े सरदार अका बिन अबी अका का बेटा बिलाल बिन अका बैठा हुआ था। अका बिन अबी अका सरदारों में सरकर्दा सरदार था। उसने ललकार कर कहा था कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का सर काट कर लाएगा, मगर ऐनुल तमर के मुआरके में वो पकड़ा गया। इससे पहले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम खाई थी कि वो अका को जिंदा पकड़ेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की कसम पूरी हो गई और उन्होंने अका का सर अपनी तलवार से काटा था। बिलाल अका का जवान बेटा था जो अपने बाप के खून का बदला लेने आया था। इब्ने बुज़ैर, उसने अपने सरदार रबिया की बात सुनकर कहा, मैं अपने बाप के सर के बदले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का सर लेने आया हूँ। एक नहीं, हम पर हजारों सरों का कर्ज चढ़ गया है। रबिया बिन बुज़ैर ने कहा। वो कुछ देर बातें करते रहे, फिर बिलाल बिन अका चला गया। रात का वक्त था। रात सर्द और तारीख थी। महीना नवंबर का था और उसी शाम रमजान का चांद नजर आया था। बिलाल बाहर जाकर रुक गया। वह अपने लश्कर के खेमों से कुछ दूर था। उसे एक तरफ से अपनी तरफ कोई आता नजर आया। नया चांद कभी का डूब चुका था। तारीख रात में चलते फिरते इंसान मुतहर्रिक साये लगते थे। साया जो बिलाल की तरफ आ रहा था, करीब आया तो बिलाल ने देखा कि वो कोई आदमी नहीं, औरत है। अभी अका, औरत ने कहा, मैं साबिया हूं, साबिया बिनते रबिया बिन बुज़ैर। जरा रोक सकते हो मेरे खातिर? ओह, रबिया बिन जुबैर की बेटी। बिलाल बिन अका ने मसरूर से लहजे में कहा, क्या मैं अभी अभी तेरे घर से उठ के नहीं आया? लेकिन बात जो कहनी है वो मैं बाप के सामने नहीं कह सकती थी। सबिहा ने कहा, क्या तूने मुझे अपने काबिल समझा है? बिलाल ने कहा, बात जो तू कहना चाहती है वो पहले ही मेरे दिल में है। गलत न समझ इब्ने अका, साबिहा ने कहा, पहले मेरी बात सुन ले। मुझे बता कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तूने कभी देखी है? नहीं बिनते रबिया। कभी मदाइन गया है तो? साबिहा ने कहा, गया हूं। सुना है फारस की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है। साबिहा ने कहा, क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि तू वो बात कह दे जो तेरे दिल में है? बिलाल ने पूछा और कहा, मैंने तुझसे ज्यादा किसी लड़की को कभी हसीन नहीं समझा। मैं तुझे तेरे बाप से मांगना चाहता था। मैं नहीं जानता था तेरे दिल में पहले ही मेरी मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मोहब्बत तो अब भी पैदा नहीं हुई, साबिहा ने कहा। मैं किसी और को चाहती हूँ। आज से नहीं, उस दिन से चाहती हूँ, उसे जिस दिन मैंने महसूस किया था कि मैं जवान होने लगी हूँ और जवानी एक साथी का मुतालबा करती है। फिर तो मुझे क्या कहने आई है? ये कि मैंने उसे अपने काबिल समझना छोड़ दिया है। साबिहा ने कहा, मर्द की ताकत औरत के जिस्म के लिए है ही नहीं। वो ताकतवर और खूबसूरत आदमी है। वो जब घोड़े पर बैठता है तो मुझे और ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर क्या हुआ उसे? वो बुज़दिल निकला। साबिहा ने कहा, वो लड़ाइयों में से भागकर आया है। दोनों बार उसे खराश तक नहीं आई थी। मुझे शक है कि वो लड़े बगैर भाग आता रहा है। वो मेरे पास आया था। मैंने उसे कह दिया है कि वो मुझे भूल जाए। मैं किसी बुज़दिल की बीवी नहीं बन सकती। उसने मेरे बाप को बताया तो बाप ने मुझे कहा कि मैं तो उसकी बीवी बनने वाली हूँ। मैंने बाप से भी कह दिया है कि मैं मैदान से भागे हुए किसी आदमी की बीवी नहीं बनूंगी। मैंने बाप से ये भी कहा है कि मुझे इस शख्स की बीवी बनना है जो तेरी लाश उसके हवाले कर दो। क्या तू अब मेरी बहादुरी आजमाना चाहती है? बिलाल ने पूछा। हाँ, साबिहा ने जवाब दिया। और इसका इनाम देख, इतना हसीन जिस्म तुझे कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, बिलाल ने कहा। लेकिन मैं एक काम का वादा नहीं करूंगा।
हमारे सरदार और हमारे कबीलों के जोशीले जवान ये ऐलान करके मुसलमानों के खिलाफ लड़ने जाते हैं कि मुसलमानों के सालार खालिद बिन वलीद का सर काट कर लाएंगे, मगर खुद कट जाते हैं या भाग आते हैं। मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा। खालिद का सर कौन काटेगा, उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। मैं वैसा वादा नहीं लूंगी, साबिहा ने कहा। मैं तेरे मुंह से नहीं, दूसरों से सुनना चाहती हूँ कि तूने सबसे ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया है और मुसलमानों को शिकस्त देने में तेरा हाथ सबसे ज्यादा है। मैं ये भी वादा करती हूँ कि तू मारा गया तो मैं किसी और की बीवी नहीं बनूंगी, अपने आप को खत्म करूंगी। मैं तुझे एक बात बता देता हूँ साबिहा, बिलाल ने कहा। मैं तेरी खातिर मैदान में नहीं उतर रहा। मेरे ऊपर अपने बाप के खून का कर्ज है। मैंने ये कर्ज चुकाना है। मेरी रूह को तस्कीन तभी होगी कि मैं इब्ने वलीद का सर अपनी बर्छी की अन्नी पर लाऊं और बनी तगलब के बच्चे बच्चे को दिखाऊं। लेकिन वो बात क्यों जुबान पर लाऊं जो हाथ से न कर सकूं। उस तक पहुंचूंगा जरूर। रास्ते में जो आएगा उसे काटता जाऊंगा। मैंने अपना घोड़ा तब्दील कर लिया है, हवा से तेज है और बड़ा ही ताकतवर। मैं तेरी ताकत और तेरी तेजी और फुर्ती देखना चाहती हूँ, साबिहा ने कहा। अगर ऐसा हो सके तो मुझे साथ ले चल, मर्दों की तरह लड़ूंगी। लेकिन तूने पीठ दिखाई तो मेरी तलवार तेरी पीठ में उतर जाएगी। मैं तुझे माले गनीमत में मुसलमानों के हवाले नहीं करना चाहता, बिलाल ने कहा। और ये भी सुन ले साबिहा, मेरा बाप अका बिन अबी अका यही अहद करके गया था कि वो खालिद बिन वलीद को खून में नहलाकर आएगा, मगर उसने हथियार डालकर अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दिया। मालूम नहीं मुसलमानों को किसने बता दिया कि ये शख्स इब्ने वलीद का खून बहाने का अहद करके आया था। इब्ने वलीद ने मेरे बाप को कैदियों से अलग किया और सबके सामने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। मैं तुझे भी यही कहता हूं कि वो बात न कहे जो तू नहीं कर सकती। और मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ जो तुझे अच्छी नहीं लगेगी, साबिहा ने कहा। अगर अब तेरे कबीले ने मैदान हार दिया तो अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दूंगी और उनसे कहूंगी कि मैं उस आदमी की बीवी बनना चाहती हूँ जो सबसे ज्यादा बहादुर है। हम इस कोशिश में अपनी जानें लड़ा दे कि मुसलमान हमारी औरतों तक न पहुंच सके, बिलाल बिन अका ने कहा। लेकिन कोई नहीं बता सकता क्या होगा। एक तरफ तेरे दिल में मुसलमानों की दुश्मनी है और दूसरी तरफ तुम अपने आप को मुसलमानों के हवाले करने की बातें करती हो। मैं ये बातें इसलिए करती हूँ कि मेरे दिल में कुछ शक और कुछ शुबह पैदा होते जा रहे हैं, साबिहा ने कहा। मुझे ऐसे महसूस होने लगा है जैसे मजहब मुसलमानों का ही सच्चा है। इतनी थोड़ी तादाद में वो फारस के और हमारे तमाम कबीलों के लश्करों को हर मैदान में शिकस्त देते चले आ रहे हैं, तो इसकी वजह इसके सिवा और क्या हो सकती है कि इन्हें किसी गैबी ताकत की मदद हासिल है। अगर यीशु मसीह खुदा के बेटे होते तो क्या खुदा अपने बेटे की उम्मत को इस तरह जलील व खौर करता। मुझे बताने वाला कोई नहीं कि मुसलमान इसी खुदा को अल्लाह कहते हैं या अल्लाह कोई और है। ऐसी बातें मुंह से न निकालो साबिहा, बिलाल ने झुंझला कर कहा। तुम बहुत बड़े सरदार की बेटी हो। अपने मजहब पर ऐसा शक न करो कि इसकी सजा हम सबको मिले। मैं मजबूर हूं इब्ने अका, साबिहा ने कहा। मेरी जात से कुछ आवाजें से उठती है। कभी ख्याल आता है जैसे मैं अपने कबीले में और अपने घर में अजनबी हूँ। ऐसे लगता है जैसे मैं कहीं और की रहने वाली हूँ। मैं कुछ नहीं समझती बिलाल। मैं जो कहती हूँ वो करो, फिर मैं तुम्हारी हूँ। ऐसा ही होगा साबिहा, बिलाल ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। मैं अगर जिंदा वापस आया तो फातेह होकर आऊंगा। अगर मारा गया तो वापस आने वालों से पूछ लेना कि मैंने मरने से पहले कितने मुसलमानों को कत्ल किया है।
बिलाल सीना की रात की तारीकी में गायब हो गया। साबिहा बिनते रबिया बिन बुजैर वही खड़ी बिलाल को साये की तरह रात की तारीकी में तहलील होता देखता रही। 3 या 4 रातें ही गुजरी थी। सीना की खेमागाह और ईसाइयों की बस्तियां तारीकों में डूबी हुई थी। रमजान 12 हिजरी का तीसरा या चौथा चांद कभी का उफक में उतर चुका था। इंसानों का एक सैलाब सीना की तरफ बढ़ा आ रहा था। ये मदीने के मुजाहिदीन की फौज थी जो सैलाब कहलाने के काबिल नहीं थी, क्योंकि इनकी तादाद 15 और 16 हजार के दरमियान थी और दुश्मन की नफरी 3-4 गुना थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सीना पर भी मज़ी वाला दाव आजमाने का फैसला किया था। उन्होंने अपने मुजाहिदीन से कहा था कि दुश्मन को और अपने आप को भी मोहलत देना खतरनाक होगा। अल्लाह हमारे साथ है, फतह और शिकस्त उसी के हाथ में है। हम उसी की जाते बारी के नाम पर कुफ्र की आग में कूदे हुए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने और भी बहुत कुछ कहा था। मुजाहिदीन के अंदाज में जोश व खरोश पहले वाला ही था। जिस्मों में अलबत्ता वो दमखम नहीं रहा था, लेकिन अज़्म रोज़े अव्वल की तरह जिंदा वो पाइंदा था। जैसा कि पहले कहा गया है कि 15-16 हजार के लश्कर से दुश्मन पर शब खून मारना इसलिए खतरनाक होता है कि खामोशी बरकरार नहीं रखी जा सकती और दुश्मन कबल वज वक्त बेदार हो जाता है। इसमें दुश्मन की घात का भी खतरा होता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन खतरों से निमटने का ये एहतमाम कर रखा था कि पहले शबकून की तरह अब के भी उन्होंने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। सालार भी वही थे जिन्हें पहले शबकून का तजुर्बा हासिल हो चुका था। अब जासूसों ने इन्हें दुश्मन के कयाम की जो इत्तिलाएं दी थी, उनके मुताबिक मदाइन की फौज और ईसाइयों का लश्कर एक ही खेमागाह में नहीं थे। खेमागाह में सिर्फ मदाइन की फौज थी और ईसाई अपनी बस्तियों में थे। ये बनी तगलब की बस्तियां थी। जासूसों ने इन बस्तियों के महल वको बता दिए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज के एक हिस्से की कमान सालार काका और दूसरे हिस्से की कमान सालार अबू लैला को दी थी। तीसरा हिस्सा अपनी कमान में रखा था। उन्होंने काका और अबू लैला को ईसाई कबीले बनी तगलब की बस्तियों पर शबखून मारने के लिए भेजा और अपने हिस्से को इनके पीछे रखा। पीछे रहने की वजह यह थी कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को खेमा गाह पर शबखून मारना था, जो बस्तियों की निस्बत जरा करीब थी। तीनों हिस्सों को बैक वक्त हमला करना था। मोरिकीन ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया था कि किसी औरत और किसी बच्चे पर हाथ न उठाए जाए। कुफ्फार को मज़ी के मुकाम पर मुसलमानों के एक शबखून का बड़ा ही तल्ख तजुर्बा हो चुका था। उन्होंने सीना की खेमागाह के इर्द गिर्द पहरे का बड़ा सख्त इंतजाम कर रखा था। गश्ती पहरे का इंतजाम भी था। 4-4 घुड़सवार खेमागाह से दूर दूर तक गश्त करते थे। मुसलमान जासूसों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस इंतजाम की भी इत्तिला दे दी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस इंतजाम को बेकार करने का बंदोबस्त कर दिया था। सीना से कुछ दूर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज पहले से तय किए हुए मंसूबे के मुताबिक रुकी। इसे आगे के इत्तिला के मुताबिक आगे बढ़ना था। चंद एक शुतर सवार जो मुसन्ना बिन हारिसा के आजमाए हुए छापामार थे, आगे चले गए थे। वह ऊंटों के काफिले की सूरत में जा रहे थे। वो सीना की खेमागाह से अभी दूर ही थे कि इन्हें किसी ने ललकारा। वो रुक गए और अपनी तरफ आते हुए घोड़ों के टाप सुनने लगे। 4 घोड़े इनके पास आ रुके। कौन हो तुम लोग? एक घुड़सवार ने इनसे पूछा। मुसाफिर है, एक शतुर सवार ने डरे हुए लहजे में जवाब दिया और किसी बस्ती का नाम लेकर कहा कि वहां जा रहे हैं। शतुर सवार 8-10 थे। इनमें से एक तो घुड़सवार को बता रहा था कि वो कहां से आए हैं
और कहाँ जा रहे हैं। दूसरे शतुर सवार ऊंटों को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देते रहे, हत्ता के 4 घुड़सवार उनके नरगे में आ गए। उतरो ऊंटों से, एक घुड़सवार ने बड़े रौब से हुक्म दिया। 4 शूटर सवार ऊंटों से इस तरह उतरे कि ऊपर से एक एक घुड़सवार पर झपटे। उनके हाथों में खंजर थे जो घुड़सवारों के जिस्मों में उतर गए। उन्हें घोड़ों से गिराकर खत्म कर दिया गया। 4 मुजाहिदीन चारों घोड़ों पर सवार हो गए और दुश्मन की खेमागाह तक चले गए। एक संतरी इन्हें अपनी सवार गश्त समझकर इनके करीब आया। अंधेरे में 2 घुड़सवार उतरे और इस संतरी को हमेशा की नींद सुला दिया। उन्होंने कई और संतरियों को खामोशी से खत्म किया और वापस आ गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे थे। वो जो ऊंटों पर गए थे, 4 घोड़े भी साथ ले आए। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि रास्ता साफ है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सरगोशियों में कासिदों को दूसरे सालारों की तरफ इस पैगाम के साथ दौड़ा दिया कि हल्ला बोल दो। उस वक्त तक घोड़ों के मुंह बंधे हुए थे, वो हिना नहीं सकते थे। सवारों ने सालारों के कहने पर घोड़ों के मुंह खोल दिए। उनके हदफ दूर नहीं थे। कुछ दूर तक घोड़ों प्यादों की रफ्तार के साथ आहिस्ता चलाए गए, फिर रफ्तार तेज कर दी गई और प्यादों को दौड़ना पड़ा। बस्तियों के करीब जाकर मशालें जला ली गई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दस्तों को इतने तेजी से आगे न बढ़ाया। इन्हें उन्होंने शबखून की तरतीब में फैला दिया था। यह ऐसी पेशकदमी थी जिसमें कोई नारा न लगाया गया, न किसी को ललकारा गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।